Good morning, students. Today we will learn about the new topic, that is adaptive radiation under topic evolution. Adaptive radiation का जो concept था वो सबसे पहले डार्विन ने देखा. Darwin, while he was roaming in Galapagos Island, what he observed that there are lot many creatures with the amazing diversity. बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, लेकिन सारे बर्ड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ? ਗੈਲਾਪੈਗੋਸ ਆਈਲੈਂਡ पे. So they have small black birds that was also known as the Darwin's finch. Then he realized that there are many varieties of finch in the same island. कौन सा island था? Galapagos. So all the varieties he was evolved on the island itself. जितने भी different types के birds हैं, I'll show you these birds that is known as the, in figure you can see the variety of beaks of fish that Darwin found in Galapagos Island. इनके आप जो चोंच है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, 4 of them are different. ठीक है, तो जो इनकी बीक है इससे मतलब ये डिफरेंट क्यों है? एक ही आइलैंड पे विद टाइम जो है इनमें चेंजेस आई हैं. तो ही केम टू नो दैट दिस इज फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर जो ओरिजिनल थे, फर्स्ट जो थे वो सीड ईटिंग थे. विद टाइम उनकी जो बीक थी वो अरोज होती गई. वाई? बिकॉज दे एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोर्स टू वेजिटेरियन फिंच. सो इंसेक्टिवोर से वेजिटेरियन फिंच बनने के लिए उनकी जो बीक की शेप थी दैट वाज चेंज्ड. सो ही गेव वन डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन? द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and radiating to other areas of geography, that is habitat, is known as the adaptive radiation. कि एक ही जगह पे विद टाइम जो है चेंजेस आती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग बीइंग में, और वो चेंजेस के बाद एक जियोग्राफिकल एरिया से जब वो दूसरे जियोग्राफिकल एरिया पे माइग्रेट चला जाता है, माइग्रेट करेगा या रेडिएट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज द अडेप्टिव रेडिएशन. So Darwin finch that represent the best example of this phenomena. Another example you can see in the Australian marsupials. These are the Australian marsupials. All of them are resemble in one or other way. So when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area that is representing different habitats, one can call this convergent evolution. ठीक है, ये जो convergent evolution है ये हमने कल की थी, ये उसकी एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. सो जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो have a adaptive radiation. This is picture showing the convergent evolution. You can see this is in this picture the Australian marsupials and placental mammals. In first there is the placental mammals, mole, anteater, mouse, lemur, flying squirrel, bobcat, wolf. See, is there some similarity or not? These are the adaptations of Australian marsupials, that is marsupial mole,
number marsupial mouse, spotted cuscus, flying flancher, then is the Tasmanian tiger, and then the Tasmanian wolf. So this is the examples of the adaptive radiation is evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. So after changes, they have migrated to the other area or different areas. Then what is the biological evolution? Biological में क्या है कि जो एवोल्यूशन है वो नेचर जो है नेचर की सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है, या हम कह सकते हैं कि व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, जैसे ही सेल आया उसके बाद जो डार्विनियन थ्योरी है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ डार्विनियन ऑफ एवोल्यूशन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, हिज मोटो इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, प्लीज़ ऐड द थ्योरी ऑफ डार्विन इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि नेचर में जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। So the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. जैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो 1 घंटे में बहुत फास्ट जैसे वो मल्टीप्लाई करते हो तो विद इन 1 आवर वो उनकी जो नंबर क्या हो जाएगा, मिलियंस होता है, यू कांट सी विद योर नेकेड आई। So a colony of bacteria growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize the feed component. So change in the medium composition would bring out only that part of the population that can survive under a new conditions. अगर जैसे एक ही मीडिया में जो है हम बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, तो अगर हम मीडिया को चेंज कर देंगे तो चेंज करने के बाद जो चेंज आएगी या जो इस मीडिया की चेंज को अडेप्ट कर लेंगे या इसको तब इस अडेप्ट न्यू चेंज में अपने आप को सर्वाइव करा लेंगे, वो न्यू चेंज में अपने आप को अडेप्ट करा लेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही सर्वाइव करेंगे। सो जैसे जैसे टाइम जो है वो पास होता जाएगा, जो फर्स्ट पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑल टुगेदर एक न्यू पॉपुलेशंस में। सो दिस इज़ द एवोल्यूशंस, दिस वुड हैपन विद इन डेज। सो फ्रॉम द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर चेंजेस होती हैं तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, मतलब नॉट ड्रास्टिक चेंजेस बट सम चेंजेस विल टेक फ्यू डेज। बट अगर सेम चेंज आप सोचो कि ये फिश में हो जाए या ह्यूमन बीइंग में हुए तो वहाँ पे जो है इट विल नॉट बी विद इन डेज, इट विल टेक अ लॉट मैनी ईयर्स to give a small change or a single change in these animals or even the birds and the plants. So हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गिवन जो बी है, बी यहाँ पे इसने हमने क्या लिया है कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि एक न्यू कंडीशन में सर्वाइव कर ले। सो नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, जो इनका डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें क्या है, नेचर सेलेक्ट फिटनेस। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। जो फिटनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं उन पे भी डिपेंड करती है। सो देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। So another way of saying is same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. So adaptive ability is inherited. कितना हम किस चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, ये जो करेक्टर है वो ये भी जो बच्चों में पेरेंट्स से ही आता है। दिस इज़ अ जेनेटिक basis. So fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature. अगर नेचर की सिलेक्शन आपको चाहिए तो you have to have ability of adaptation, और adaptation किससे आती है, फिटनेस से। So branching जो descents and the natural selection are two key concepts of Darwin theory। ठीक है, डार्विन की थ्योरी के ये दोनों ही कंसेप्ट हैं। नेचर सेलेक्ट किसको करती है,
एंड इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क थे, उन्होंने भी यही कहा था कि एवोल्यूशन फॉर्म लाइफ के फॉर्म जो हैं वो ड्रिवन बाय यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, और जो ऑर्गन्स हम नहीं यूज़ कर रहे हैं विद टाइम क्या वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन अदरवाइज इट विल गॉन अकॉर्डिंग टू लेमार्क एंड डार्विन। जितना यूज़ करोगे ब्रेन को उतना ही ज़्यादा शार्प होएगा, अगर नहीं करोगे तो एक टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। सो in evolution process or the result of process, so we can say that the survival of the fittest is only because of the inherited characters. So नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेस्ड है सर्टन ऑब्जर्वेशंस पे, जैसे नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज, सीजन जो है फ्लक्चुएशन है, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टर्स। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ वेरिएशंस जो है वो इनहेरिटेड होती हैं, ये नेचुरल थ्योरी के अंदर आता है। सो थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी reproduced maximally. So and the fact that population sizes in reality are limited means there have been competition for resource, क्योंकि जो नेचर है, नेचर के रिसोर्सेज क्या हैं वो लिमिटेड हैं, इन रिसोर्सेज के लिए एक कंपटीशन है, और जो फिट है वो इस कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएगा और नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। सो सम जो सर्वाइव्स only some survives and grew at the cost of other and could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was that variations which are inherited and will take resource utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Okay. So what is the evolution mechanism of evolution, that we will discuss in the next lecture. I hope this is clear with you.